جان ہی بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شہر میں صبح سویرے سورج کے ڈیرے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے، موسم خوشگوار ہو گیا، ہوا میں نمی کا تناسب 50% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے شہر میں ہفتے کے روز طوفانی بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں شاہزیب شہزاد سے، جی بتائیے گا۔ جی بالکل، اگر لاہور شہر کے موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو پرسوں رات کو ہونے والی بوندا باندی کے بعد موسم انتہائی خوشگوار ہو چکا ہے اور ابھی بھی ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر کا موسم ابر آلود ہے اور کچھ دیر بعد جو ہے وہ بادلوں اور سورج کی آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کل بھی موسم ایسا ہی رہے گا، جبکہ ہفتے کے روز جو ہے وہ طوفانی بارش کی پیش گوئی کی جا رہی ہے، 50% پریڈکشن شو کی جا رہی ہے۔ جبکہ آپ کو بتاؤں کہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر کا ابھی درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 85% کے قریب ہے، جبکہ ہوا کی رفتار 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے چل رہی ہے۔ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جائے گا۔ جی شکریہ آپ کا۔ تو خبر یہ ہے برائلر مافیا بے لگام ہے، صافی گوشت اور انڈوں کے منہ مانگے دام ہے۔ مرغی کا گوشت مزید 15 روپے مہنگا، فی کلو قیمت 634 روپے ہو گئی ہے۔ زندہ برائلر کے دام بھی 10 روپے فی کلو بڑھ گئے۔ زندہ برائلر ہول سیل 421، پرچون ریٹ 437 روپے کلو مقرر۔ فارمی انڈے مزید 2 روپے مہنگے، فی درجن قیمت 275 روپے ہو گئی۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 8130 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں عبدالقادر سے۔ عبدالقادر بتائیے گا۔ جی بالکل، جو آج برائلر اور انڈوں کے سرکاری نقصان میں جاری کیے گئے تو اس میں برائلر کی قیمت میں بھی اضافہ کیا گیا اور انڈے کی قیمت مزید بڑھا دی گئی ہے۔ برائلر کی قیمت میں گزشتہ روز بھی اضافہ کیا گیا تھا، آج مزید 15 روپے بڑھا کر قیمت جو ہے وہ 634 روپے فی کلو کی سطح پر پہنچا دی گئی ہے۔ مسلسل اضافے کی وجہ سے برائلر کی فروخت جو ہے پرچون مارکیٹ میں غیر معمولی سطح پر آ چکی ہوئی ہے اور لوگوں کی جانب سے برائلر کی خریداری جو ہے وہ ترک کی جا رہی ہے، تاہم اس کے باوجود مصنوعی قلت پیدا کر کے ڈیمانڈ کو ہائی رکھا جا رہا ہے تاکہ قیمتیں جو ہیں وہ تیز رہیں۔ زندہ برائلر کی قیمت میں 10 روپے کا اضافہ کیا گیا، ہول سیل زندہ برائلر 421، جبکہ پرچون زندہ برائلر کی قیمت 437 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ انڈوں کی جو سپلائی ہے وہ بھی متاثر ہوئی ہے کیونکہ موسم میں تبدیلی ہوئی ہے، موسم میں ہلکی سی خشکی آئی ہے تو انڈوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ جو ہے دیکھنے کو مل رہا ہے۔ انڈوں کی قیمتیں مستحکم کی، تاہم یہ استحکام جو ہے وہ 2 روپے اضافے کے ساتھ ختم کر دیا گیا اور 273 سے قیمت بڑھا کر 275 روپے فی درجن مقرر کی گئی۔ ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 8130 روپے کی سطح پر پہنچ چکی ہے۔ جی ٹھیک ہے عبدالقادر، شکریہ آپ کا۔ یوٹیلیٹی اسٹورز پر صارفین کی قطاریں بدستور لگی ہیں۔ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے صارفین کو ہی مارکیٹ سے کم قیمت پر اشیاء مل رہی ہیں۔ یوٹیلیٹی اسٹور سے ریلیف پیکج لینا آسان نہیں، دستاویز لائیں اور شناختی کارڈ نمبر اندراج کرائیں۔ اگر غربت کے معیار پر پورے اترے تو ریلیف پیکج سے حصہ مل سکے گا۔ اس کے لیے یوٹیلیٹی اسٹور پر صارفین کی رجسٹریشن کا عمل جاری۔ یوٹیلیٹی اسٹور پر ہی بے نظیر پروگرام کے کاؤنٹرز لگے ہیں۔ شہر کے تمام یوٹیلیٹی اسٹورز پر رش معمول بن گیا۔ خواتین کی بڑی تعداد رجسٹریشن کے لیے شناختی کارڈ لے کر یوٹیلیٹی اسٹورز پر پہنچنے لگیں۔ اہلیت کے معیار پر پورا اترنے والوں کی ہی ریلیف پیکج کے لیے رجسٹریشن ہوتی ہے۔ ریلیف پیکج سے فائدہ لینے کی خواہش مند خواتین کہتی ہیں چکر پر چکر لگا رہے ہیں، کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر بھی اہلیت لسٹ میں نہیں آتے۔ میں ادھر آئی ہوں، بڑی مشکل ہے، میں مورے دی مریض ہے، سخت علاقے اس کی میرے کا مسئلہ لگ رہی بہت اوکھی تھی۔ صبح آ کے بیٹھی ہوئی، پہلے بھی میں ایک دن آئی تھی تو ادھر میں آ کے کھڑی ہوئی کافی دیر، تو انہوں نے کہا آج سسٹم خراب ہے، تو آج آئے ہیں تو آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ابھی باری آتے آتے پتہ نہیں 2 گھنٹے لگے، کتنی دیر لگ جائے۔ یوٹیلیٹی اسٹور پر عام صارف کو 10 کلو آٹا 1370 اور بینزین صارف کو 648 روپے میں ملتا ہے۔ اسی طرح چینی بھی بالترتیب 155 اور 109 روپے فی کلو ہے، جبکہ بینزین انکم سپورٹ پروگرام صارف کے لیے گھی 355 اور عام صارف کے لیے 425 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ کیمرامین محمد بلال کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ حکومت کی گیس صارف کو ایک اور جھٹکا دینے کی تیاری، ذرائع کے مطابق گیس بلوں میں رعایت اور سلیب ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔
वफाकी हुकूमत की गैस सारिफीन को मजीद झटके देने की तैयारी। ज़राए के मुताबिक गैस बिलों पर रियायत और स्लैब खत्म करने का फैसला कर लिया गया। गैस का टैरिफ यकसा तौर पर लागू किया जाएगा। गैस का 1 यूनिट चले या ज्यादा रेट एक ही होगा। गैस की कीमत बढ़ने के बाद फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि गैस का यकसा टैरिफ 4,501 रुपए फी MMBTU होगा। टैरिफ और स्लैब में दिया जाने वाला रिलीफ भी खत्म कर दिया जाएगा। फैसले का इतलाक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के गैस सारिफीन पर होगा। राय के मुताबिक फैसला लागू होने से गैस सारिफीन के बिल कई गुना बढ़ जाएंगे। कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और घरेलू सारिफीन का टैरिफ भी यकसा हो जाएगा। कैमरा टीम के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। रमज़ान में भी महंगाई के चर्चे, बढ़ गए अवाम के खर्चे। लहसुन 750, अदरक 650, प्याज 250, टमाटर 130 फी किलो तक फरोख्त हो रहे। करेले 450, शिमला मिर्च 350, अरबी 220, बंद गोभी 130 रुपये किलो बिकने लगी। केला दर्जा अव्वल 250, दर्जा दो में 180 रुपये फी दर्जन में दस्तयाब है। तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइएगा। सब्जियों और फलों के जो सरकारी रिलीज जारी किए जाते हैं रोजाना की बुनियाद पर, इनमें भी अब जो है महंगाई का अंतर जो है वो मामूल बन चुका है, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर ही कीमतों में इजाफा जो है वो देखने को सामने आ रहा है। और आज जो सब्जियों की सरकारी रिलीज जारी की गई उसमें 4 सब्जियां महंगी की गई। अदरक 5 रुपये महंगा करके 520 रुपये में फर्क किया गया। मार्केट में 650 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मेथी 7 रुपये महंगी करके 40 रुपये में फर्क की गई, लेकिन 60 रुपये फी किलो तक की जा रही है। बंद गोभी 10 रुपये इजाफे के बाद 85 रुपये में फर्क की गई है, लेकिन ये सरकारी रिलीज तक है। मार्केट में 130 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। सलगम 5 रुपये महंगा करके 30 रुपये में फर्क किया गया, लेकिन मार्केट में 50 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। फल जो है वो भी आम आदमी की कुव्वत खरीद में नहीं आ सके। सेब, काला कोल्हू 325 के तरफ 400 रुपये, केला दर्जा अव्वल 193 के तरफ 250 और कल कदों का केला 140 के तरफ 180 रुपये फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। अमरूद 250 और पपीता 320 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि खजूर रानी 600 रुपये फी किलो तक मार्केट में फरोख्त की जा रही है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, शुक्रिया आपका। पंजाब के सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि इस मौके खात्मे माहौलियात से मुतालिक कानून साजी और कवानीन की बेहतरी पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने सुबह की तारीखी सबसे बड़ी मुहिम प्लान फॉर पाकिस्तान शुरू की। अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टियन के हॉकिंस की क़यादत में वफ़द की सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब से मुलाकात में तालीम, सेहत-ए-आमा, माहौलियात समेत दीगर शोबों में ताउन और 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। मरीम औरंगज़ेब ने वज़ीर आला मरीम नवाज़ के ग्रीन सुथरा पंजाब डेटा अथॉरिटी समेत मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी के एजेंडे पर ब्रीफ किया। मरीम औरंगज़ेब का कहना था कि तालीम निसाब में भी माहौलियाती बेहतरी के मज़ामीन शामिल किए जा रहे हैं। पंजाब को पाकिस्तान का पहला डिजिटल सूबा बना रहे हैं। 40 से ज़ायद खिदमात घर की दहलीज पर फराहम करेंगे। वफ़द ने वज़ीर आला मरीम नवाज़ के क्लाइमेट और इस्लाहात के एजेंडे में ताउन की यकीन दहानी करवाई। वफ़द ने कहा कि स्मॉग और माहौलियाती मसाइल से निपटने में अमरीका पंजाब हुकूमत का साथ देगा। सेनेट की जनरल नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के 5 और तहरीक इंसाफ के 2 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हैं। ख़वातीन के मखसूस नशिस्तों के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में मुज़ाकरात नाकाम हो गए। 5 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। 7 जनरल नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार ही मैदान में रह गए। तकनीकी तौर पर 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो गए। मुस्लिम लीग नून के 5 और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। नून लीग के परवेज रशीद, नासिर महमूद, आहद चीमा और तलाल चौधरी जीत गए। हुकूमती इत्तेहाद के हिमायत याफ्ता मोहसिन नकवी भी कामयाब करार पाए हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राजा नासिर अब्बास और हामिद खान शामिल। हामिद खान कामयाब। सेनेट की बाकी रह जाने वाली नशिस्तों पर इलेक्शन 2 अप्रैल को होगा। दूसरी जानिब खवातीन की मखसूस नशिस्तों के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में मुज़ाकरात नाकाम हो गए। मुस्लिम लीग नून ने खातून नशिस्त पर पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी का अपनी उम्मीदवार फायजा मलिक को दस्तबरदार करने से इनकार। मुस्लिम लीग नून की जानिब से अनुशा रहमान और बुशरा अंजुम भट्ट उम्मीदवार हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सनम जावेद भी सेनेट इंतखाबात में मैदान में मौजूद हैं। पंजाब के नए माली साल के बजट पर बहस मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजा रहमान कहते हैं माजी की करप्शन का दौर ख़त्म हुआ। अब मरीम नवाज़ की क़यादत में सूबा तरक्की करेगा।
पंजाब असम्बली में बजट पर जारी बहस 5वें रोज मुकम्मल। 160 अरकान ने इजहार ख्याल किया। वजीर खजाना मुज्तबा शुजाउर रहमान ने बजट पर बहस समेटते हुए कहा, 2018 में वोट चोरी करके हुकूमत मुसल्लत की गई। अब मरियम नवाज की क़यादत में सूबा तरक्की करता नजर आएगा। इस सूबे के साथ, पंजाब के साथ जो ज्यादती की गई, पंजाब अब फिर से 2018 में जहां से पंजाब की तामीर और तरक्की का सफर रुका था, पंजाब के लोगों की खिदमत का सफर रुका था, पंजाब में तरक्की और खुशहाली का सफर रुका था, इंशाअल्लाह फिर से शुरू हुआ। ऐवान में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भचर ने एक बार फिर मियां असलम इकबाल की ऐवान में महफूज वापसी का मुतालबा किया। राना आफ्ताब ने कहा कि हमारे नुमाइंदों पर मुकदमात की तफसील बताई जाए, हम जमानतें करवाने के लिए तैयार हैं। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास जुमेरात की सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। महफूज पंजाब शहरियों को खूनी डोज से बचाने के लिए वज़ीर आला मरीम नवाज का अहसन इक़दाम। मोटर बाइक्स पर सेफ्टी वायर गार्ड की तनसीब मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब भर के देही और बुनियादी मराकज़ सेहत के रिवैम्पिंग की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने आबशार खिदमत मरकज में सेफ्टी वायर गार्ड मुहिम का आगाज किया। उन्होंने धाती डोर से बचाव के लिए सेफ्टी वायर शहरियों में तकसीम किए। मरियम नवाज की ट्रैफिक पुलिस को सेफ्टी वायर गार्ड की पाबंदी कराने की हिदायत। वज़ीर आला ने आबशार खिदमत मरकज में मौजूद शहरियों से सहूलतों के हवाले से दरियाफ्त किया। मरियम नवाज ने कहा, धाती डोर और पतंगबाजी के खूनी खेल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। किसी को आवाम की जिंदगियों से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। इस मौके पर ब्रीफिंग में बताया गया, सेफ्टी वायर्स न होने की वजह से चालान नहीं होगा, ये आवाम के तहफ्फुज के लिए जरूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत हेल्थ रिफॉर्म्स पर इजलास में अहम मंसूबों की मंजूरी। फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील प्रोजेक्ट जल्द शुरू करने का फैसला। मरियम नवाज ने पंजाब भर के देही और बुनियादी मराकज़ सेहत की रिवैम्पिंग की मंजूरी भी दे दी। सेक्रेटरी सेहत ने इजलास में बताया, 250 बेड्स पर मुश्तमिल मोहम्मद नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल जून 2026 में मुकम्मल होगा। सूबे भर में 2500 BHU और 300 RHC की अपग्रेडेशन की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, हेल्थ सेक्टर में बेहतरी और इस्लाहात अव्वलीन तरजीह है। मरियम नवाज ने महकमा लाइव स्टॉक के हवाले से इजलास की भी सदारत की। वज़ीर आला ने चीन को भैंस का गोश्त और दूध की बरामद बढ़ाने का टारगेट दे दिया। इजलास में वेटरनरी डॉक्टर्स के लिए मोटर बाइक्स और मोबाइल डिस्पेंसरीज के लिए वैन फराहम करने की तजवीज पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि डेयरी मसनूआत की बरामद बढ़ाने के लिए नया मैकेनिज्म बनाना होगा। एक और इजलास की सदारत करते हुए मरियम नवाज ने नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए 3 पुलिस स्टेशंस बनाने की मंजूरी दी। इजलास में एंटी नारकोटिक्स के लिए नया महकमा बनाने पर भी इत्तफाक किया गया। स्मगलिंग रोकने के लिए 13 एक्साइज चेक पोस्टें कायम की जाएंगी। 21 अप्रैल को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक NA 119 लाहौर के लिए शहजाद फारूक, NA 132 कसूर के लिए सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे, जबकि सूबाई हल्का PP 22 चकवाल में हकीम निसार, PP 32 गुजरात से चौधरी परवेज़ इलाही इलेक्शन लड़ेंगे। PP 54 नारोवाल में अवैस कासिम, PP 139 शेखपुरा में एजाज भट्टी, PP 149 लाहौर के लिए हाफिज ज़ेशान उम्मीदवार होंगे। PP 158 लाहौर में मोहनस इलाही, PP 164 लाहौर में यूसुफ म्यू तहरीक इंसाफ के पार्टी उम्मीदवार होंगे। बकिया 5 हलकों के लिए भी पार्टी उम्मीदवारों का जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। ज़िला कचहरी लाहौर की अदालत ने अमीर बलाज टिपो के कत्ल केस के मुलजिम एहसन शाह को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। तफसीलात के मुताबिक जुडिशल मजिस्ट्रेट सरवत बतूल ने अमीर बलाज कत्ल केस में पुलिस की दरख्वास्त पर समाअत की। केस के मरकज़ी मुलजिम एहसन शाह को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश किया गया। पुलिस ने मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। अदालत ने मुलजिम एहसन शाह को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जेल भेज दिया है। एहसन शाह मकतूल अमीर बलाज का करीबी दोस्त था। सरकारी वकला के मुताबिक एहसन शाह पर मुकदमा में नामजद मुलजिमों के साथ राबितों का इल्ज़ाम है। एहसन शाह ने मुबैना तौर पर मुखबरी के लिए नामजद मुलजिमों से रकम वसूल की थी। और ख़बर ये है, गंगाराम हस्पताल के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की फ़ीसों में करोड़ों रुपए के गबन का इंकशाफ हुआ है। लाहौर न्यूज़ की खबर पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का फौरी एक्शन, डेप्यूटी डायरेक्टर अमानत को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने 4 रुकनी
इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। गंगाराम हॉस्पिटल के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की फीसों में करोड़ों रुपए के गबन का मामला। लाहौर न्यूज की खबर पर महकमा स्पेशलाइज सेहत का फौरी एक्शन। डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस सैमुअल अमानत को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया, जबकि सीनियर बजट एंड अकाउंट ऑफिसर हेल्थ यूनिवर्सिटी मोहम्मद इसरारुल हक को डायरेक्टर फाइनेंस गंगाराम अस्पताल का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सुलेमान रफीक ने 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। इंक्वायरी कमेटी में डिप्टी डायरेक्टर और कन्वीनियर तानिया मलिक, SO जनरल जावेद हुसैन, डायरेक्टर इंटरनल विंग ऑडिट हसीब हसन और ऑडिट ऑफिसर मोहम्मद हसीब अमदाद शामिल।